میں نے سنا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے جاسوس آسمان سے تارے بھی توڑ لاتے ہیں۔ عامر بن عثمان نے کہا، کیا صلیبی علاقوں میں اس کا کوئی آدمی نہیں؟ ماں نے مجھے بتایا ہے کہ اسحاق ترک ایک بڑا ہی قابل اور ہوشیار آدمی ہے۔ شمس النساء نے جواب دیا، وہ بیروت گیا ہوا ہے، صبح خبر تو وہی لائے گا، لیکن اس کی طرف سے کوئی اطلاع قاہرہ نہیں پہنچی۔ دیکھو عامر، فوجوں کی نقل و حرکت ہوتی ہے تو یہ راز بے نقاب ہو جاتے ہیں، مگر یہاں کوئی ایسی ہلچل نظر نہیں آتی۔ جو راز ہے وہ عز الدین اور عماد الدین کے سینے میں ہے۔ یہ اندرونی حلقوں سے مل سکتا ہے اور تمہیں یہ راز انوشی دے سکتی ہے، مگر وہ جو قیمت مانگتی ہے وہ میں نہیں دے سکوں گا۔ عامر نے کہا، تمہیں یہ قیمت دینی پڑے گی۔ شمس النساء نے کہا، میں یہ قیمت دینے کو تیار ہوں۔ میں اپنے بھائی کے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ مذہب اور امت رسول کی عظمت کے لیے ہماری آپس کی محبت اور دلوں کی خواہشیں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ہمیں ان شہیدوں کا قرض ادا کرنا ہے جو اسلام کے نام پر اپنی دلہنوں کو نوجوانی میں بیوہ کر گئے ہیں۔ عامر، کچھ نہ سوچو، قربان ہو جاؤ۔ اس وقت اسحاق ترک بیروت میں تھا۔ بیروت صلیبی حکمران بالڈوین کی فرنگی لشکر کی بہت بڑی چھاونی بنا ہوا تھا۔ اس سلسلے کی پچھلی اقساط میں سنایا جا چکا ہے کہ بالڈوین کو ایک شکست سلطان ایوبی کے بھائی العادل نے دی تھی، اور تھوڑے ہی عرصے بعد اس نے سلطان ایوبی کی فوج کو گھات میں لینے کی کوشش کی تو خود سلطان ایوبی کی گھات میں آ گیا تھا۔ وہ گرفتار ہوتے ہوتے بچا اور دونوں بار اس کی فوج تتر بتر ہو کر پسپا ہوئی۔ وہ تو جیسے راتوں کو سوتا بھی نہیں تھا، ان دونوں پسپائیوں کا انتقام لینے کے منصوبے بناتا رہتا تھا۔ اس نے الملک صالح کو اپنا اتحادی بنا لیا تھا، مگر اس کا یہ اتحادی مر گیا۔ اب وہ عز الدین اور عماد الدین کو سلطان ایوبی کے خلاف اپنے محاذ میں شامل کر رہا تھا۔ اس نے قاہرہ میں جاسوس بھیج رکھے تھے جو سلطان ایوبی کے ارادوں کا پتہ چلا رہے تھے۔ اسحاق ترک بیروت پہنچ چکا تھا اور بالڈوین کی ہائی کمانڈ تک پہنچنے کی ترکیبیں سوچ رہا تھا۔ وہاں جس سے ملتا تھا اپنے آپ کو کسی مسلمان علاقے سے بھاگا ہوا عیسائی بتاتا۔ اس طرح اس نے بہت سے لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کر لی۔ وہ چونکہ ترکی کا باشندہ تھا اس لیے سفید فام تھا، خوبرو اور تنومند بھی تھا۔ گھوڑا سواری، نیزہ بازی، تیر اندازی اور تیغزنی میں خصوصی مہارت رکھتا تھا۔ اس کے بازو لمبے اور ان میں طاقت تھی۔ دماغ بھی تیز اور باریک بھی تھا۔ دوسروں کا دل موہنے کے لیے، بھڑکانے کے لیے اور ہر کسی کو اپنا گرویدہ بنانے کے لیے وہ مناسب ڈھونگ رچانے کے فن کا ماہر تھا۔ وہ اپنے ساتھیوں سے کہا کرتا تھا کہ میری اصل قوت میرا ایمان اور میرا کردار ہے۔ ان دنوں بیروت میں سلطان ایوبی کے خلاف جنگی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ وہاں کے لوگوں کو فوج میں بھرتی کرنے کے لیے فوجی میلے ہو رہے تھے جن میں فوجی کرتب دکھاتے اور تیغزنی وغیرہ کے مقابلے کرتے تھے۔ ایک روز اسحاق ترک ایسے ہی ایک مقابلے کا تماشا دیکھنے جا پہنچا۔ یہ صلیبیوں کا ایک پرانا کھیل تھا۔ دو گھڑ سوار ہاتھوں میں لمبی برچیاں تانے ایک دوسرے کی طرف گھوڑے سر پر دوڑاتے اور ایک دوسرے کو برچی سے گھوڑے سے گرانے کی کوشش کرتے تھے۔ اگر کوئی پہلی بار نہ گرے تو ایک بار پھر ایک دوسرے کی طرف گھوڑے دوڑاتے اور ایک دوسرے کو برچی سے گرانے کے لیے وار کرتے تھے۔ سوار زرہ بختر پہنے ہوئے ہوتے تھے۔ یہ مقابلہ ہوتا رہا، سوار گرتے رہے، دوسروں کو مقابلے کے لیے للکارتے رہے۔ ایک سوار نے کئی سواروں کو گرایا، اس نے کسی اور کو للکارا تو کوئی بھی سامنے نہ آیا۔ اسحاق ترک صحرائی لباس میں تھا۔ وہ میدان میں آ گیا۔ مقابلہ کرنے والے سوار فوجی تھے اور زرہ پوش۔ اسحاق کو عام لباس میں میدان میں اترتے دیکھ کر تماشائیوں نے قہقہہ لگایا۔ وہاں صلیبی جرنیل اور دیگر کمانڈر وغیرہ بھی تھے۔ وہ بھی خوب ہنسے۔ جس گھڑ سوار نے سب کو للکارا تھا وہ گھوڑے پر سوار میدان میں گھوڑے کو ادھر ادھر بگا رہا تھا۔ وہ صلیبی فوج کے ایک دستے کا کمانڈر تھا۔ اس نے ازرہ مذاق گھوڑے کا رخ اسحاق کی طرف کیا اور قریب آ کر برچی اسحاق کو ماری۔ اسحاق وار بچا گیا۔ تماشائیوں نے ایک اور قہقہہ لگایا۔ پھر شور اٹھا، پاگل پاگل، کوئی پاگل ہے، اسے جان سے مار ڈالو۔ گھڑ سوار کمانڈر نے گھوڑا پیچھے کو دوڑایا۔ اس کے ساتھی کمانڈروں میں سے کسی نے اسے کہا، اب کہ اسے برچھی میں اڑس کر ساتھ لے جاؤ، زندہ نہ رہے۔ کسی اور نے چلا کر کہا، یہ تمہاری توہین ہے، ایک پاگل دیہاتی نے تمہیں للکارا ہے۔ گھوڑ سوار نے ایڑ لگائی۔ اسحاق نہتا تھا۔ گھوڑے کو اپنی طرف آتا دیکھ کر اس نے چوہا اتار پھینکا اور برچھی کا وار بچانے کے لیے تیار ہو گیا۔ گھڑ سوار ذرا سا جھکا، برچھی ہاتھ میں تولی، قریب آ کر اس نے اسحاق پر وار کیا۔ اسحاق کچھ دور تک گھوڑے کے ساتھ اس طرح دوڑتا گیا جیسے برچھی اس کے جسم میں اتر گئی ہو اور وہ اس کے ساتھ گھسیٹا جا رہا ہو۔ تماشائیوں نے داد و تحسین کا شور بپا کر دیا، لیکن یہ دیکھ کر سب پر سناٹا طاری ہو گیا کہ اسحاق ترک دوڑتے دوڑتے سوار کے پیچھے گھوڑے پر سوار ہو گیا تھا۔ برچھی کو اس نے پکڑ رکھا تھا، سوار نے بھی برچھی کو پکڑ رکھا تھا۔ اس نے گھوڑے کو گھمایا، گھوڑا ایک چکر میں دوڑنے لگا۔ اسحاق اس سے برچھی چھیننے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے برچھی چھین لی اور دوڑتے گھوڑے سے کود کھڑا ہوا۔ اس نے برچھی لہرا کر للکارا، مجھے ایک گھوڑا دے دو، کوئی بھی میرے مقابلے میں آ جائے، زرہ بختر کے بغیر مقابلہ کروں گا۔
घुड़सवार कमांडर घोड़े से उतरकर इसहाक के पास आया। उसने बाजू फैला रखे थे। इसहाक ने बर्छी जमीन में गाड़ दी। सलीबी सवार ने उसे गले लगा लिया। इसहाक ने कहा कि मुकाबला करूंगा, मुझे घोड़ा दे दो। उसे एक घोड़ा और एक बर्छी दे दी गई। वो उसी कमांडर के मुकाबले में आया। तमाशाई दमबखुद थे। उन्हें यकीन था कि ये बदकिस्मत देहाती ज़िरब अख्तर के बगैर बर्छी से बहुत बुरी मौत मरेगा। दोनों घोड़े दूर आमने सामने खड़े हो गए। इशारे पर घोड़े दौड़े। कमांडर ने बर्छी इसहाक के पेट के सीध में रखी हुई थी। इसहाक ने अपने जिस्म को जरा सा मोड़कर कमांडर का वार खाता कर दिया। इसके साथ ही बर्छी कमांडर के पेट में लगी। कमांडर घोड़े की दूसरी तरफ गिर पड़ा। उसने गलती ये की कि उस तरफ वाला पांव रिकाब से निकालना भूल गया। घोड़ा उसे घसीटने लगा। इस मुकाबले में किसी तमाशाई को किसी सवार की मदद करने की इजाजत नहीं थी। सवार मर भी जाया करते थे। कमांडर को घोड़ा घसीट रहा था। इसहाक ने घूमकर देखा तो उसने अपने घोड़े को घुमाया, एड़ लगाई और कमांडर के घोड़े के पहलू में आकर अपने घोड़े से कूदकर उसके घोड़े की पीठ पर जा बैठा। लगाम खींची और घोड़े को रोक लिया। कमांडर ने चूंकि ज़िरब अख्तर पहन रखी थी, इसलिए उसका जिस्म जमीन की रगड़ से महफूज रहा, वरना उसकी खाल उतर जाती। कमांडर ने उसे अपने बाजुओं के घेरे में ले लिया और उससे पूछा कि वो कौन है। इसहाक तुर्क ने बताया कि वो मुसलमानों के इलाके से भागा हुआ ईसाई है। वो अपने आप को आम किस्म का ईसाई तो कह नहीं सकता था। ऐसी घुड़सवारी और ऐसी नेजाबाजी का माहिर कोई फौजी हो सकता था या कोई ऊंचे खानदान का फर्द। उसने कमांडर को बताया कि मुसलमान उसे जबरदस्ती फौज में भर्ती करना चाहते थे, इसलिए वो वहां से भाग आया है। कमांडर उसे अपने साथ ले गया। ये कमांडर बाल्डविन की फौज का नाइट था। नाइट सलीबी फौज का बहुत बड़ा एजाज और रुतबा हुआ करता था, जो उसको दिया जाता था जो जाती तौर पर निडर और माहिर जंगजू हो और इज्तमाई तौर पर बहुत बड़े दस्ते को जंगी अहलियत से लड़ा सकता हो। इस एजाज के लिए जो औसाफ देखे जाते थे वो किसी किसी में पाए जाते थे। ये एजाज जिसे मिलता उसे सर से पांव तक ज़िरब अख्तर मिला करती थी। सलीबियों के नाइट जंगी काबिलियत और बेखौफी की बदौलत आज तक मशहूर हैं। उनका इतना रुतबा होता था कि उनके मशवरों से बादशाह अपने फैसले बदल दिया करते थे। इसहाक तुर्क ने ज़िरब अख्तर के बगैर उस नाइट को पछाड़ दिया और उसे घोड़े के पांव तले आने से बचा लिया तो नाइट उसकी कदरों कीमत समझ गया। उसे अपने घर ले जाकर नाइट ने उसे शराब पेश की। मुसलमान जासूसों के लिए ये एक मुश्किल पैदा हो जाया करती थी कि दुश्मन के इलाके में वो ईसाइयत का बहरूप तार लेते, ऊंचे हलकों में भी पहुंच जाया करते थे, मगर वहां शराब पानी की तरह पी पिलाई जाती थी। मुसलमान शराब से गुरेज करते थे, बहाने तराशते थे। बाज जासूस शराब के सिलसिले में शक में पकड़े भी गए। उलमा ऐसा फतवा देने से हिचकिचाते थे कि इन हालात में शराब जायज है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ये हिदायत जारी की थी कि शराब पीने की इजाजत नहीं दी जा सकती, क्योंकि मजहब में हराम होने के अलावा ये खतरा था कि शराब नोशी आदत बन जाती है। दूसरे ये कि जिसने शराब कभी न पी हो वो होश खोकर अपनी असलियत बेनकाब कर जाता है। अलबत्ता सुल्तान अय्यूबी ने कहा था कि दुश्मन के मुल्क में शराब से गुरेज की कोशिश करो। अगर फर्ज का तकाजा आए तो शराब पी लो, तो इतनी पी ली जाए जो बदमस्त न करे। यही मुश्किल इसहाक तुर्क के सामने आ गई। वो ईमान का पक्का था। उसने पीने से इनकार कर दिया और कहा, मेरी ताकत आपने देख ली है। इसका राज सिर्फ ये है कि मैं शराब नहीं पीता। मेरे उस्ताद ने मुझे कहा था कि तुम्हारे जिस्म में शराब चली गई तो तुम्हारे नीचे जो घोड़ा होगा वो महसूस करेगा कि उसकी पीठ पर एक कमजोर इंसान बैठा है। वो भी तुम्हारा हुक्म नहीं मानेगा। इसहाक ने गर्दन से लटकते धागे को खींचा। उसके कुर्ते के अंदर से छोटी सी सलीब बाहर आई। इसहाक ने कहा, मैंने अपनी ताकत को इस सलीब के तहफ्फुज के लिए सर्व करने के लिए बाइबल पर हाथ रखकर कसम खाई थी कि शराब नहीं पीऊंगा, बदकारी नहीं करूंगा। मेरी कसम न तोड़े। तुम कहाँ रहते हो? नाइट ने पूछा। घर वाले तुम्हारे साथ आए हैं? नहीं, इसहाक ने जवाब दिया। मैं घर वालों से ये कहकर भागा था कि अपने किसी इलाके में कोई तसल्ली का ठिकाना बन गया तो उन्हें यहाँ ले आऊंगा। तुम्हारा ठिकाना बन गया है, नाइट ने कहा। मैं तुम्हें अपनी बाकायदा फौज में नहीं ले रहा। तुम मेरे जाती मुहाफिज होगे। हर कमांडर के साथ 2-4 मुहाफिज होते हैं, लेकिन मैं तुम जैसे औसाफ के आदमियों का कदरदान हूँ। मेरी सिपा का एक मुहाफिज मेरे पास है, तुम दूसरे होगे। तुम्हारी रिहाइश का इंतजाम कर दिया जाएगा। वो जमाना जंगजुओं का था। इसहाक जैसे ताकतवर और दलेर आदमियों की खूब कद्र होती थी। नाइट ने उसकी रिहाइश का इंतजाम कर दिया। उसके लिए अरबी घोड़े और दीगर सामान का बंदोबस्त किया और उसकी तनख्वाह मुकर्रर कर दी। इसहाक तुर्क को खुदा ने दिमागी सलाहियतें बड़ी फ्याजी से अता की थी। उन्हें बुरुएकार लाते हुए वो 2 दिनों में उस सलीबी नाइट का मोतमिद बन गया। मेरी सिर्फ एक ख्वाहिश है, उसने नाइट से कहा। जिस तरह मुसलमानों का किबला अव्वल हमारे कब्जे में आ गया है, उनके खाना काबा पर भी हमारा कब्जा हो जाए। इस्लाम थोड़े से अरसे में हमेशा के लिए मर जाएगा। अगर सारी दुनिया पर नहीं तो दुनियाए अरब पर सलीब की मुकद्दस हुक्मरानी होनी चाहिए। तुम ख्वाब देख रहे हो मेरे दोस्त, नाइट ने कहा।
मुसलमानों को इतनी जल्दी शिकस्त देना आसान नहीं। अगर हमने मुसलमानों के काबे की तरफ पेशकदमी की तो सारी दुनिया के मुसलमान इकट्ठे हो जाएंगे। उन्हें छोड़ो, हम अभी तक अकेले सलाहुद्दीन अय्यूबी को शिकस्त नहीं दे सके। आप लोग अपने ही पैदा किए हुए वहमों का शिकार हो गए हैं, इसहाक तुर्क ने कहा। मुसलमानों में इत्तेहाद नहीं रहा। सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने मुसलमान दुश्मनों में अकेला रह गया है। क्या हलब और मूसल के नए हुक्मरान इज़्ज़ुद्दीन और इमादुद्दीन आपके हिमायती नहीं? वो आपकी मदद के मोहताज और मुंतजिर हैं। आपके जासूसों ने मुसलमानों को खोखला कर दिया है। मैं आपको वहां की सही तस्वीर बताता हूँ। उसने अल्फाज में ऐसी तस्वीर पेश की जिससे नाइट की बातें खिल गईं। इसहाक ने ऐसे मशवरे दिए जो कोई जर्नैल ही दे सकता था। नाइट की आंखें खुल गईं। तुम मुझे हैरान कर देने की हद तक ज़हीन हो, नाइट ने कहा। हम कुछ ऐसे ही मंसूबे बना रहे हैं जो तुम्हारी ख्वाहिशों और अज़ाइम के मुताबिक हैं। मेरे इस मशवरे को जरा अहमियत दें कि सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरह छापा मार जैश तैयार करें, इसहाक ने कहा। एक जैश मेरे हवाले कर दें। मैं मुसलमान इलाकों और उनकी नाजुक रगों से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। मुझे दूर अंदर तक वो जगह मालूम है जहाँ वो रसद वगैरह के जखीरे रखते हैं। इधर जंग हुई तो उधर उनका कोई जखीरा नहीं रहने दूंगा। ऐसा ही होगा, नाइट ने कहा। हम तुम्हें मौका देंगे। मैंने तुम्हें शम्सुन्निसा के साथ बातें करते देखा था, अनोशी आमिर बिन उस्मान से कह रही थी। वो मूसल में थे। आमिर ने उसे मोहब्बत का झांसा दे दिया था। अनोशी आधी रात के बाद उसके कमरे में आ गई थी। कहने लगी, शम्सुन्निसा मुझसे ज्यादा खूबसूरत तो नहीं। उसका नाम ना लो, आमिर ने उकताहट से कहा। वो शहजादी है, मुझे अपना नौकर समझती है और हुक्म चला रही होती है। मैं कभी उसके पास खड़ा होता हूं तो ये हुक्म की तामील होती है। तुमसे भी मैं इसीलिए डरता था। तुम्हें भी मैं शहजादी समझता रहा, लेकिन तुमने मेरा डर दूर कर दिया है। फिर भी कभी कभी डर आ ही जाता है कि तुम मुझे किसी धोखे में मुब्तला कर रही हो। ये भी ना हुआ तो अपना ये अंजाम मुझे साफ नजर आ रहा है कि बड़ों ने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो मुझे तहखाने में बंद कर देंगे। अगर तुम्हें किसी ने तहखाने में बंद किया तो मेरे इशारे पर मूसल की ईंट से ईंट बच जाएगी, अनूशी ने कहा और उसे अपने साथ लगा लिया। प्यार से बोली, तुम्हारा ये डर बजा है कि मैं तुम्हें कोई धोखा दे रही हूँ। मेरा वजूद एक दिलकश धोखा है, लेकिन तुम मुझे इंसान के रूप में देखो। मुझे अपनी इबादत करने दो। अनोशी पर बेखुदी सी तारी हो गई थी। आमिर बिन उस्मान की उंगलियां उसके बालों में रेंग रही थी। रात गुजरती जा रही थी। अनोशी के लहजे और अंदाज में खुमार आ गया था। आमिर बिन उस्मान के लिए ये बड़ा ही सख्त इम्तिहान था। वो जवान था, तनोमंद था और वो गैर शादीशुदा था। कई बार उसके जज्बात अपने काबू से निकल चुके थे। उसने दिल ही दिल में ध्यान खुदा की तरफ कर दिया और खुदा से इल्तिजाई करने लगा कि उसकी जाते बारी उसे सब्र और हिम्मत और इस्तक़लाल अता फरमाए। रात थोड़ी सी रह गई थी जब अनोशी उसके कमरे से निकली। फिर ऐसी 3-4 रातें आईं। अनोशी उसके वजूद में जज्ब हो चुकी थी। उसने देख लिया था कि आमिर हैवान नहीं इंसान है, मगर आमिर की जात में जो जलजले बपा हो रहे थे उनसे अनोशी वाकिफ नहीं थी। मुझे इन मुसलमान हुक्मरानों से नफरत हो गई है, एक रात आमिर ने अनोशी से कहा। मैंने सलीबी हुक्मरान नहीं देखे, हमारे हुक्मरानों से तो अच्छे होंगे। उसने राजदारी से पूछा, क्या यह मुमकिन नहीं कि सलीबी आकर इन इलाकों पर कब्जा कर लें? अनोशी बहुत ही चालाक लड़की थी। बचपन से उस्तादों के हाथों में खेली थी। उसका हुस्न कलों की दीवारें तोड़ देता था। जाबिर हुक्मरानों को वो अपना गुलाम बना लिया करती थी, मगर वो इंसानी फितरत की कमजोरियों और फितरी तकाजों से आजाद नहीं थी। कोई भी इंसान खा वो औसाफ और आदात के लिहाज से दरिंदा ही क्यों न बन जाए, इस फितरत की जंजीर से आजाद नहीं हो सकता जो खुदा ने बनाई है। अनोशी अपनी तिश्नगी आमिर बिन उस्मान को बता चुकी थी। ये उसकी दुखती रग थी जो उसने आमिर के हाथ में दे दी थी। सच्चे प्यार की तिश्नगी और आमिर के वजूद ने उसका डंक मार दिया था। वो शराब के नशे को जानती थी, मोहब्बत के खुमार से वाकिफ नहीं थी। यह खुमार जब तारी हुआ और आमिर ने सलीबी हुक्मरानों के हक में बात कर दी तो अनोशी की तमाम तर तरबियत बेकार हो गई। उसने आमिर के साथ ऐसी बातें शुरू कर दी जो जासूस और तखरीबकार नहीं किया करते। आमिर का मकसद पूरा हो गया। उसने बच बच कर सवाल पूछने शुरू कर दिए। अगर उस वक्त अनोशी को उसके सलीबी आका इज़्ज़ुद्दीन और उसके वो 2 आला हाकिम देखते जो उसे गोहरे नायाब समझते थे तो यकीन न करते कि ये वो लड़की है जिसे सुडानी परी कहा करते हैं। वो मासूम सी बच्ची बनी हुई थी और उसे जर्रा भर एहसास नहीं था कि वो सल्तनत इस्लामिया की जड़ें खोखली करने की बजाय सलीब को दीमक की तरह खा रही है।